So our today's chapter is ratio analysis. रेशियो एनालिसिस को समझने के लिए बेटा मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. तो देयर इज अ मिस्टर ए जो बेटा अपने बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं. जो अपने बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं ₹50 लाख. मैं अगर आपसे ये पूछूं कि किस तरह का उनका बिजनेस होगा, आप कहोगे तो 50 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो बिजनेस अच्छा ही होगा, राइट. देन बेटा आई गिव यू अनदर इन्फॉर्मेशन दैट देयर इज अनदर पर्सन मिस्टर बी who is generating profit from his business ₹70 लाख. अब मैं आपसे पूछूंगी किसका बिजनेस आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, तो इसको देख के आप यही कहोगे कि भाई देखने से तो मिस्टर बी का बिजनेस ज़्यादा अच्छा दिखा. लेकिन अगर मैं आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दूँ कि मिस्टर ए ने जो 50 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है बेटा, वो 200 लाख की सेल पर किया. और मिस्टर बी ने बेटा जो प्रॉफिट जनरेट किया वो उन्होंने 1000 लाख की सेल पर जनरेट. यानी कि जब 1000 लाख की उन्होंने गुड्स को सेल किया बेटा, देन ही इज एबल टू जनरेट 70 लाख रुपीज प्रॉफिट. एंड कंपेयर टू मिस्टर ए ने 200 लाख की सेल पर ही 50 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, राइट. तो अगर बेटा मैं नेट प्रॉफिट परसेंटेज निकालता हूँ, नेट प्रॉफिट परसेंटेज बेटा ए का कितना होगा 50 लाख ऑन द सेल ऑफ 200 लाख into 100. So this will you can say that it will be equal to 25%, right. In case of a B beta, total profit is 70 lakh and total sale is 1000 lakh. Net profit percentage into 100. So double zero will be cancelled out. So you can see that A's position is much better than B. So what is ratio analysis? We have to what is ratio analysis? We can say that it is a tool used by manager for analysis of financial state. For analysis of financial state. किसी भी बिजनेस के बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो हम एनालिसिस करते हैं बेटा, दैट इज रेशियो एनालिसिस. इन रेशियो एनालिसिस बेटा वी विल स्टडी एट फर्स्ट वी विल स्टडी लिक्विडिटी रेशियो. Then we will study profitability ratio. Then we will study solvency ratio. जिनको लॉन्ग टर्म रेशियो भी कहा जाता है. Then we will study turnover ratio. These are the four ratios broadly which we are going to study in this section, right? So first of all, let's start with the liquidity ratio. Liquidity ratios
और शॉर्ट टर्म solvency ratio. Liquidity ratios और short term solvency ratio. First of all, beta, what is liquidity ratio? Liquidity ratios tells us about the organizational position to meet short term debt. Organizational position to meet short term debt. What is the meaning of position here बेटा? Position means capacity. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बेटा अपने शॉर्ट टर्म डेट को देने की जो कैपेसिटी होती है बेटा, वो हमें पता चलती है उनके लिक्विडिटी रेशियो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म डेट? शॉर्ट टर्म डेट मीन्स डेट that's payable in 1 year. That's payable in 1 year. Or it is also called as current liability. Or it is also called as current liability. Right. Now with the liquidity ratio, divided into two parts. First one is current ratio. And second one is liquid ratio. First one is current ratio, second one is liquid ratio. So first of all, let's discuss the current ratio. Current ratio is equal to current assets by current liability. Current ratio is equal to current assets by current liability. Right. Current ratio is also called as working capital ratio. The current ratio is also called as working capital ratio. So first of all, we need to understand what is working capital. First of all, we need to understand what is working. So the working capital is amount required for day-to-day operations of business. Day-to-day operations of working capital is any capital which is required for day-to-day operation of business. इसका मतलब क्या बेटा? बहुत रिलैक्स होकर आपने समझना है. तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. तो फॉर एग्जांपल, in my business, I got order from Mr. A. I got order from Mr. A. और ऑर्डर बेटा कितने का मिला है मुझे? ₹1,00,000. राइट. आई गॉट ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर ऑफ ₹1,00,000. अब बेटा ये जो 1,00,000 रुपए हैं, ये मिस्टर ए जो है मुझे these ₹1,00,000 will be receivable
आफ्टर 3 मंथ। उन्होंने ये पैसे अभी नहीं दिए हैं, उन्होंने कहा कि भाई पैसे जो है मैं आपको 3 महीने के बाद दूँ। इट मीन्स मिस्टर ए इज डेटर फॉर मी। हमारे बिजनेस के लिए बेटा मिस्टर ए क्या डेटर है? डेटर का मतलब क्या हो गया? करंट एसेट। डेटर का मतलब क्या हो गया बेटा? करंट, राइट। तो बेटा जो मुझे ऑर्डर मिला वो कितने का मिला है? 1 लाख का। तो कैन आई से दैट माई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू ₹1 लाख। मेरी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है बेटा वो कितनी होगी? 1 लाख, राइट। नाउ बेटा मैंने मिस्टर बी से गुड्स ली ऑन क्रेडिट, यानी कि मिस्टर बी ने मुझे क्या किया? क्रेडिट में गुड्स प्रोवाइड। उसका मतलब आप समझते हो रॉ मटेरियल। जो 1 लाख का ऑर्डर था बेटा, इसके लिए जो मुझे गुड्स की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने मिस्टर बी से ली क्रेडिट। और कितने का क्रेडिट उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया बेटा? 30,000 रुपीज। मिस्टर बी प्रोवाइडेड 30,000 रुपीज, मीन्स प्रोवाइडेड क्रेडिट on raw material. Provided credit on raw material. Now Mr. B is my creditor. Mr. B is my creditor. Right. Now the question is, बेटा जो 1 लाख का जो पूरा ऑर्डर था, 1 लाख का पूरा ऑर्डर था, उसमें आउट ऑफ पॉकेट मुझे अपनी जेब से कितना खर्च करना पड़ेगा? ये टोटल ऑर्डर था आपका 1 लाख, इसमें से बेटा 30,000 की जो गुड्स है वो आपको क्रेडिट में मिल चुकी है। तो अब जो आपकी नेट रिक्वायरमेंट है, अब जो बेटा आपकी जो नेट रिक्वायरमेंट है वो कितने की है? कैन आई से दैट ऑफ 70,000 रुपीज। तो ये बेटा जो नेट रिक्वायरमेंट होती है इसी को हम क्या कहते हैं? नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो 1 लाख रुपीज की जो रिक्वायरमेंट थी हमारी, दैट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और बेटा जो हमारी नेट रिक्वायरमेंट है दैट इज अवर नेट वर्किंग which is equal to 70,000. It means a part of working capital requirement is financed by the creditor or current liability. Therefore, net working capital is equal to what? Current asset minus current liability. नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है आपका? नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट। भाई आपको कितने आपका डेटर कितना था? 1 लाख का। और लाइबिलिटी कितनी थी बेटा उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए? 30,000। तो टोटल बेटा आपकी नेट वर्किंग कैपिटल जो आपके आउट ऑफ पॉकेट जाएगा बेटा वो कितना हो गया आपका? 70,000, राइट। यू कैन से दैट इट मीन्स द ग्रोस वर्किंग कैपिटल
is equal to current assets and net working capital is equal to current asset minus current liability, राइट। क्वेश्चन में बेटा कभी भी अगर लिखा होगा वर्किंग कैपिटल, क्वेश्चन में अगर कभी भी लिखा हुआ आता है वर्किंग कैपिटल, इट मीन्स इट ऑलवेज मीन्स नेट वर्किंग कैपिटल, इट ऑलवेज मीन्स नेट वर्किंग कैपिटल, राइट।